नेवर नेवर थिंक कि मैं कहीं एक पर्टिकुलर जगह से आ रहा हूँ या मैं एक पर्टिकुलर स्कूल से हूँ या एक पर्टिकुलर कुछ भी सिचुएशन से हूँ तो मैं शायद बड़ा नहीं कर पाऊँ। लाइफ आई थिंक आपको मौके देती है, बार बार नहीं देती, लेकिन अगर आपको मौका लगता है आपके पास है तो प्लीज ग्रैब इट, गिव योर बेस्ट। मनी हैज नेवर बीन मोटिवेशन फॉर मी। माई ड्रीम ऑफ लाइफ इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 5,000 पीपल। So that is how I always quantify my success of life. We have more than 100 now, so I would say I'm at least at a 2% of my dream. So, hello everyone. Today we have Jitendra Sharma, founder and CEO of Fair Original. So, first of all, thank you so much, Jitendra, for joining me. I am so excited to know more about your journey, about Shark Tank experience, and with Sharks. So, first of all, tell us a brief about Fair Originals, what it does, and how it is going to help people. Okay, so just to give you a brief about Hair Originals. Hair Originals is primarily based on the human hair extension industry. So what we do, we basically manufacture uh, hair extensions and wigs with 100% human hair. These are the hair which we procure from the temples of South India. And we manufacture all of these hair extensions and wigs by employing poor women around our factory areas, giving them skill development, and then basically manufacturing these products. And we are exporting them to more than 22 countries. Okay, okay, awesome. So let's talk about the backstory. Like you did chemical engineering from IIT Delhi and had a job as a pre-com manager. So you are doing your job from 11 years. So why did you left job to start here original? So basically, when I always, 2008 was when I graduated, and my first job, and that was I continued with the same company for 11 years. It was based in Paris, and I was into oil and gas, the company called Total. And then, so I worked in around 35, 40 countries while working for Total. And first thing was, I always wanted to come back to India and do something in my own country. That was the first trigger. Second thing was, about this whole industry. I met a few friends from Brazil, and when I was posted in Africa, in Angola specific, I came to know about this industry. I came to know that this whole global industry, which is a $14 billion global market size, which is like more than 1 lakh crore rupees. This whole market is being governed from India. The raw material, the source lies within India. So that was something that interested me. Then I obviously did my basic research about backend operation and how it works. Then obviously the IITN in me kind of got excited about organizing this whole segment. There have been brands created in Italy, in US for this segment, and then I thought that when India plays such a big role, then we should actually do you know come up with something from India wherein we manufacture the top best quality product and then export it to the whole of the world. So that was the whole idea, and I realized that we have got an opportunity to eventually have a global brand in beauty space from India, especially in this category. So that was something what excited me. Definitely, I was having a very good pay package, but then this whole idea excited me, and I've never regretted it for a minute, even after leaving it. Money has never been motivation for me. My dream of life is to create employment for at least 5,000 people. So that is how I always quantify my success of life. We have more than 100 now, so I would say I'm at least at a 2% of my dream. Yeah, that's so inspiring. So I wanted to ask you, like आईआईटी का कितना बड़ा रोल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप में या आपके कैरियर में स्टार्टअप में आईआईटी का कितना मेजर रोल रहा है? सो आईआईटी का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। ऑनेस्टली आईआईटी में कोई ऐसी नई बहुत ऐसा कोई पढ़ाई में कुछ बहुत ऐसा नया हो, ये तो नहीं रहा। पहली चीज़ तो आईआईटी का जो एग्ज़ाम स्पेशली 2003 के टाइम में जब लोगों ने दिया था तो बहुत
बहुत ही कॉम्पिटिटिव था। आज का मैं जानता नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैं नहीं बोलूँगा। तो ऑब्वियसली एक तो वहाँ से एक जो कॉम्पिटिटिव कुछ करने का जो एक जज़्बा कहूँगा जो आता है, सेकंडली कीड़ा। कीड़ा बिल्कुल। सेकंडली जो जो लोग आपके साथ होते हैं, उन लोगों के साथ जब आप देखते हो कि लोग क्या-क्या अलग-अलग चीज़ें कर रहे हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस बहुत में छोटा सा मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरे कुछ बैचमेट, मेरे दोस्त बॉलीवुड में एक्टिंग भी कर रहे हैं फ्रॉम आईआईटी। मेरे कुछ दोस्त ऑब्वियसली सीनियर फ्लिपकार्ट के जो ओनर्स हैं वो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे एक बैच सीनियर। ज़ोमैटो के को-फाउंडर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, मेरे बैचमेट। तो जब मैंने इन लोगों की जर्नीज़ को देखा था और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, तो मुझे ऐसा मतलब ऐसा कभी लगा नहीं कि कुछ भी इम्पॉसिबल है। तो वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आईआईटी से आता है एंड आई थिंक उसके अलावा एक जो बेसिक ये चीज़ हो जाती है कि एनालिटिकल स्किल्स जो कहीं न कहीं इन जनरल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ आईआईटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर सिर्फ़ एक ही क्वालिटी है तो वो है मेरी मैथमेटिक्स या एनालिटिकल स्किल। मैं शायद अगर कोई एक्सेल शीट देखूँ तो मैं शायद 30 सेकंड्स के अंदर उसमें बता सकता हूँ कहाँ-कहाँ क्या मेरे को चीज़ गलत लग रहा है। तो आई थिंक वो एनालिटिकल स्किल्स ये सब एंटरप्रेन्योरशिप में ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट भी होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में आईआईटी या एजुकेशन से ज़्यादा जो मैटर करता है वो करता है पर्सीवरेंस। बेसिकली आपको एक चीज़ पकड़ पकड़ के जिसमें आपको बिलीफ हो और आपको लगे रहना पड़ता है। आई थिंक उससे बड़ा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं। ओके, ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका बैकग्राउंड बिफोर योर ओरिजिनल्स बहुत डिफरेंट जैसे कि आप काम करते थे। हुँ। सो हाउ डिड यू नेविगेट थ्रू द इंडस्ट्री दैट इज सो न्यू टू यू? और डिड यू प्रायर लाइक आपका पिछला जो जॉब एक्सपीरियंस था उसका भी रोल रहा लाइक हियर ओरिजिनल्स में? हाँ, सो ये एक बहुत आई वुड से जब मैं खुद व्हेन आई लुक बैक इस पूरी अपनी सिचुएशन पे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत ही डिफरेंट ही ज़ोन है क्योंकि मैं बहुत ही सुपर टेक्निकल जॉब में था ऑयल एंड गैस में। उसमें भी और वहाँ से बिल्कुल हेयर एक्सटेंशन एंड ऑल एक बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट है। तो यस मैं कभी-कभी खुद ही बहुत कन्फ्यूज़ मतलब आई मीन बहुत सरप्राइज़ हो जाता हूँ पीछे सोच के कि मैंने ये सोच भी कैसे लिया एक पॉइंट पे कि मैं ये कर पाऊँगा। बट आई थिंक एज़ आई सेड एक बार जब आपको धीरे-धीरे किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ क्या रही जो पिछले जॉब से मैं कहूँगा, पहली चीज़ मेरे पिछले जॉब की वजह से ट्रैवल बहुत करता था। मैं 2 महीने एक कंट्री में, दूसरे महीने दूसरे कंट्री में, तो मेरे को इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में जब मेरे को लगने लगा तो मैंने मैं खुद बहुत रिसर्च करने का मौका मिल गया अलग-अलग जगह पे। जो मैं अपने काम से आता था, बाद में फ्री रहता था, तो मैं खुद ही लोगों से बात की अलग-अलग कंट्री के। तो मेरी मार्केट रिसर्च बहुत अच्छी हुई। मैंने खुद सैलून टू सैलून जा के लोगों को ना एक्चुअली प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की, मुझे समझ में आए, चाहिए क्या लोगों को। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रहा। दूसरी चीज़ ऑयल एंड गैस में मेरा जो मेजर रोल था वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में था। तो बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जैसे मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था वो कुछ $16 बिलियन का था, जो अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं। उसमें अलग-अलग मॉड्यूल्स आई थिंक 14 देशों में बन रहे थे। सिंगापुर से लेके कोरिया एंड अंगोला एंड अदर पार्ट्स, फ्रांस एंड अदर और वहाँ फिर उनको प्रोजेक्ट को एक जगह कंबाइन करके फिर उसको स्टार्ट कराना होता था। तो बड़े प्रोजेक्ट्स पे कैसे पूरी प्लानिंग होती है, कैसे लोग एक साथ मिलके एक बड़े मिशन में जुड़ते हैं, इस सारी चीज़ का जो एक्सपीरियंस था वो मेरे को बहुत काम आ रहा है। क्योंकि अभी भी हम लोग भी इवेंचुअली एक तरह का एक ये एक बड़ा मिशन प्रोजेक्ट जिसमें हम ऑब्वियसली आने वाले 5 साल में एक एटलीस्ट पहले 2 साल में हम एक 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू पे जाना चाहते हैं और इवेंचुअली उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड इन 5 टू 6 ईयर 1000 करोड़ प्लस करना चाहते हैं। तो वो जो इस पूरे इतने बड़े मिशन के लिए कैसे सारी चीज़ें जुड़नी चाहिए, आई थिंक मेरे पिछले जॉब के एक्सपीरियंस से कहीं न कहीं काफ़ी मदद। ओके, ऑसम, ऑसम। सो मुझे ये जानना है कि द साग सेट की हेयर ओरिजिनल्स बहुत जेनरिक नेम है, तो पीपल माइट थिंक कि ये एक कॉस्मेटिक ब्रांड का नेम है। तो आप उस कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करते हो एंड इज इट बीन ए प्रॉब्लम फॉर यू टिल नाउ?
नहीं, सो बेसिकली इस नाम को सोचने का रीज़न बहुत सिंपल था कि जैसे हेयर में भी अगर बात की जाए तो 2 तरह के हेयर होते हैं। एक होते हैं जो आर्टिफ़िशियल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। एक होते हैं जो नेचुरल ह्यूमन हेयर। तो हमारा फोर्टे या जिस पूरी स्टोरी पे नैरेटिव पे हम काम कर रहे हैं वो है ही ह्यूमन हेयर, नेचुरल हेयर पे। क्योंकि वही है जो इंडिया से जिसमें इंडिया का कमांड है। तो कहीं न कहीं वो एक डिफरेंशिएशन लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज़ अगर हमारे बारे में जानने को, सोचने को आए तो वो ये आए कि ये एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट पे, ओरिजिनल हेयर यानी कि नेचुरल हेयर पे काम करना चाहते हैं। उसी की वजह से हमने इस पर किया और इनफैक्ट इसलिए हमने हेयर को यूज़ भी किया क्योंकि हम हेयर इंडस्ट्री के ही अराउंड रिवॉल्व करना चाहते हैं। हम स्किन केयर या अलग किसी और कैटेगरी में मूव करने का या उसको एक्सपैंड करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम हेयर केयर में ही बेसिकली पूरा रिवॉल्व करें। ओके, ओके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक हेयर ओरिजिनल सोर्सेस जो कि हेयर सोर्स करता है वो साउथ टेम्पल से और लीगली सोर्स करता है। तो लीगल और इनलीगल सोर्सिंग में क्या डिफरेंस? तो लीगल या एथिकल सोर्सिंग अगर हम बोलें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। स्पेशली इस एस्पेक्ट को अगर मैं बोलूँ तो जो स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की ऑडियंस लाइक यूएस एंड यूरोप, बहुत ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दे वांट टू बी श्योर ऑफ। तो एथिकल सोर्स में हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेयर की। ह्यूमन हेयर बेसिकली अगर फीमेल के प्रोडक्ट बनाने हैं तो आपको फीमेल का ही बाल चाहिए। तो अगेन वो किसी फीमेल के सर से ही आएगा। तो इंडिया में तो ये मशीनरी है, एक रिचुअल एस्पेक्ट है जिसकी वजह से साउथ में स्पेशली विमेन अपने हेयर डोनेट करते हैं और विलिंगली करते हैं और टेम्पल्स उनको ऑक्शन करते हैं ताकि उसकी उससे कमाए हुए पैसों से वो सोशल एक्टिविटीज़ कर सकें, वो समाज कल्याण की चीज़ें कर सकें। इस तरह के अलावा पूरी दुनिया में और कहीं भी ये इस तरह का सिस्टम, इस तरह का स्पिरिचुअल कल्चर कहीं एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो अगर कहीं और जगह से जैसे चाइना या बाकी जगहों से जो एक्सपोर्ट या कुछ भी होता है तो वो ऑब्वियसली फ़ोर्सफुल हेयर डोनेशन, जहाँ लोगों की मर्ज़ी के बिना उनसे हेयर को डोनेट कराया जा रहा है, सिर्फ़ उससे जुड़े हुए पैसे को देखते हुए, तो इसलिए उसको एथिकली और अनएथिकल उसमें लिया जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इवन जो इंडिया में भी और जो आप देखोगे इंडियन मार्केट्स में भी ज़्यादातर लोग मोस्टली मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं चाइना से, मिक्स्ड एयर एंड ऑल उसको प्रोडक्ट मंगाया और उसको आगे बेचते हैं। तो हम इसीलिए हमारी जो बेसिक मेन थीम जिसको हम रखना चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और रादर जो टेक्नोलॉजीज़ चाइना में और बेटर डेवलप्ड है प्रोसेसिंग की, उन्हें धीरे-धीरे सीख के इवेंचुअली हम अ, ओवरऑल बेटर प्रोसेसिंग अपना पूरा प्रोडक्ट एथिकल एयर सोर्स के साथ पूरी दुनिया में पहुँचाने का हमारा विज़न। Okay, okay, got it. So, like, how has the Indian market for hair extension changed since you started? और आपकी डेमोग्राफी क्या है? सो सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब इस चीज़ को जब हमने 2019 के एंड 2020 बिगिनिंग कह देते हैं जब हम शुरू किया, तो कहीं न कहीं बेसिकली मेजर मार्केट जो हमने सोचा हुआ था और जो आज भी है कि जो ज़्यादा बड़ा मार्केट है वो नॉर्थ अमेरिका है, सबसे बड़ा मार्केट, जो अराउंड 5 से 6 बिलियन डॉलर का है, एज़ पर द रिसर्च एस्टिमेट्स। इंडियन मार्केट की बात की जाए तो शुरू में हमें कोई बहुत अंदाज़ा नहीं था। इट वाज़ मोर लाइक कि कोविड के बाद हमारे पास ऑब्वियसली इंडिया में ही सबसे ज़्यादा ऑप्शन था कि हम इसको करके देखें। तो शुरू में जो मार्केट हमें समझ में आया अभी, तो वी हैव रियलाइज़्ड इट्स अ वेरी बिग मार्केट। वी हैव एस्टिमेटेड द मार्केट साइज़, ये अराउंड 1.7 बिलियन डॉलर का मार्केट साइज़ इंडिया में हम लोगों को नज़र आता है। ऑब्वियसली ये कोई रिसर्च से नहीं आता है, ये हमने खुद ही एस्टिमेट किया हुआ है। डेमोग्राफी की अगर बात की जाए तो 2 तरह का सेगमेंटेशन है बेसिकली, एक है नीड बेस्ड, दूसरा है एस्पिरेशनल। तो नीड बेस्ड है वो फीमेल जो हेयर लॉस अ, या हेयर थिनिंग या एनी हेयर इश्यू से जो भी फीमेल इससे गुज़र रही है, तो वो ऑब्वियसली नीड बेस्ड कैटेगरी में आते हैं। एंड सेकंड इज़ एस्पिरेशनल, जहाँ किसी वुमेन को ज़्यादा हेयर वॉल्यूम, ज़्यादा हेयर लेंथ या हेयर कलर विदाउट डैमेजिंग द हेयर विद द केमिकल ऑफ द कलर,
ये इस कैटेगरी को एयर आई मीन एस्पिरेशनल कैटेगरी है। जैसे हमारे कलर स्ट्रीक्स का प्रोडक्ट है जो जो ऑब्वियसली एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है और जो वन ऑफ द बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है हमारा। तो टिपिकली वी कैन से 18 टू 45 ईयर ओल्ड फीमेल is the demography for our products, and obviously both in the need based and in the aspirational segment. Okay, okay. So I want to ask you like B2B मॉडल जो था आपका वो बहुत अच्छा काम कर रहा था ऑलरेडी, तो आपने क्यों डिसाइड किया D2C मॉडल में जाने के लिए? So basically everything is well planned. It's not that कि हमने पहले ऐसे करके फिर हम कहीं कोई पिवट कर रहे हैं। बेसिकली हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है ना, दो तरह की प्रोडक्ट इसमें आती है। एक होता है परमानेंट हेयर एक्सटेंशन प्रोडक्ट, दूसरा है DIY प्रोडक्ट। और अगेन ये ना बहुत न्यू कैटेगरी क्रिएशन है इंडिया में। लोगों को अभी तक प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं। उनको उसकी प्रॉब्लम या एस्पिरेशन का आइडिया है, पर उस सॉल्यूशन इन प्रोडक्ट से है, कैसे है, ये उन्हें नहीं आइडिया। तो इसके लिए कहीं न कहीं हमने ओमनी चैनल अप्रोच को अपनाने की कोशिश की शुरू से। हमारा आइडिया है कि कस्टमर के पास मैक्सिमम टच पॉइंट्स होने चाहिए। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो हमारा एक सो कॉल्ड B2B कह लें या ऑफलाइन प्रेजेंस कह लें, हमने सैलून्स को अपना वन ऑफ द मीडियम और वन ऑफ द चैनल पार्टनर्स बनाया, जहाँ की हमारे प्रोडक्ट्स को एंड कंज्यूमर या तो जाकर वहाँ देख भी सकता है, ट्राई कर सकता है, तब उसके बाद खरीदें। और सेकेंडली जो लो टिकट साइज प्रोडक्ट्स हैं या वो जो प्रोडक्ट जिनमें कस्टमर को लगता है कि वो बिना कंसल्टेशन के, बिना ट्रायल के उनको ऑनलाइन खरीद सकता है, तो उनके लिए हमने मार्केट प्लेसेस से लेके वेबसाइट का पूरा ऑप्शन दिया है। तो हमने बेसिकली एक ओवरऑल एक कंज्यूमर के लिए हम लोग, और हम अकेली ऐसी एक कंपनी और ब्रांड है जो पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम इस पूरे कैटेगरी का बिल्ड कर रहे हैं। एंड एज अ कैटेगरी लीडर इंडिया में हम इसमें अभी सबसे बड़े प्लेयर हैं, तो ये हमें अपनी ज़िम्मेदारी भी लगती है कि हम एंड कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें और उनको अवेयर करें और उनको सही प्रोडक्ट, जैसे हमने शार्क टैंक में भी बोला था, सही प्रोडक्ट सही प्राइस पे पहुँचाएँ। तो अगर आप हमारे कॉम्पिटिशन या किसी से मिलाएँगे भी, हमारे प्राइसेज़ आपको एकदम बिल्कुल डिफरेंटली प्राइस दिखेंगे। और उसका सीधा कारण है कि हमने बहुत मेहनत की है, 5 साल मैन्युफैक्चर किया है मैंने। पूरी अपनी सारी जितनी भी हमारी नॉलेज थी सबको यूज़ करके और पूरा अपना बिज़नेस मॉडल बिल्ड करके तब हम इस पूरे फील्ड में उतरे। तो आई वांट टू आस्क यू डिड यू हैव एनी एक्सपेक्टेशन लाइक जब आप शार्क टैंक में गए थे तो आपका कोई एक्सपेक्टेशन था पहले से कि लाइक आपको डील मिलेगी और जब आपको डील मिल रही थी, जब आपको 2 डील्स मिली तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? लाइक व्हाट्स योर ऑन योर हेड? तो मैं इसमें एक चीज़ बोलूँगा, जब हम लोग जा रहे थे इसमें ना, तो सबसे पहली चीज़ क्योंकि उस समय तक जब मैं लोगों से ये बोलता था कि ये मैं इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग, ही हेयर और इस सारी चीज़ पे, और लोग मेरा बैकग्राउंड भी जानते थे, लोग ये भी जानते थे मैं कितनी हाई पेइंग एक बढ़िया ड्रॉप करता था। तो बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते थे कि तुम मतलब क्या, मतलब हो क्या गया है तुम्हें, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, क्यों पागलपंती कर रहे हो? एग्ज़ैक्टली यही होता था। तो मेरे को शार्क टैंक से सबसे ज़्यादा जो चाहिए था वो मतलब उम्मीद थी कि वैलिडेशन हो इस पूरी प्लेटफ़ॉर्म का, इस पूरे बिज़नेस का। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट शार्क टैंक से टेक अवे रहा। और एक्चुअली जब हम लोग वहाँ गए, जब देखा और सभी लोगों ने हमको वैलिडेट किया। इनफैक्ट हम उस सिचुएशन में थे जहाँ हम चूज़ करना पड़ रहा है हमें। ऑल्दो वो जितने भी शार्क्स हैं वो सब लोग अपने-अपने धुरंधर हैं। बट हम उतनी अच्छी पोज़ीशन में, या ऐसे मानो कि कुछ हमारे अंदर उनको हमारे आइडिया में ऐसा नज़र आया कि हमें सेलेक्ट चूज़ करना पड़ा, तो इससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं थी। एंड वी लाइक टू बी हम्बल। आई वुड से ये कहीं न कहीं आई मीन ईश्वर की, हमारे माता-पिता की कहीं न कहीं एक ब्लेसिंग की वजह से हमें इतना अच्छा सिचुएशन उस समय मिला। एंड मोर देन दैट मुझे लगता है कि जो वैलिडेशन था मार्केट से, आई मीन जो उन सभी शार्क से, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। हुँ, और बाकी वो डील किससे लेना, नहीं लेना, ऑनेस्टली उस समय पे इतना इतना जल्दी-जल्दी चीज़ें होती हैं कि बहुत ज़्यादा तो आप प्लान कर नहीं सकते। बट कहीं न कहीं मेरे जो ज़हन में था उस समय पे, अगेन इतना नहीं सोचा था, लेकिन ये ज़रूर था कि अगर जो 3 लोग एक्चुअली थे, हमने पहले उन्हीं को सोचा हुआ था दिमाग में कि अगर इनमें से कोई भी 1-2
लोग अपने को मिले तो हम ज़रूर उनको चाहते थे। तो बेसिकली पीयूष और अश्नीर हमारे दिमाग में थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी सोचने का तरीका है, जो मेरा काम करने का तरीका है, वो थोड़ा मतलब जैसे मैंने इनको देखा है, मैं काइंड ऑफ कह सकता हूँ कि वो मैच करता है या मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, व्हाटएवर वे यू वांट टू से दैट। लाइक थोड़ा एग्रेसिवली कैसे चीज़ों को बिल्ड करना है, या जैसे पूरा इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल पीयूष बंसल, लेंसकार्ट जिस तरह का इकोसिस्टम ओमनी चैनल बिल्ड करा है, दैट इज़ एक्ज़ैक्टली हाउ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर बिज़नेस आल्सो। दैट इज़ एक्ज़ैक्टली हाउ वी वांट टू डू आवर डी2सी। और अगेन मैं बोलूँगा, अगर पीयूष बंसल मैं तो पीयूष बंसल वाला डी2सी कर रहा हूँ, और वो 5,000 करोड़ का है और 20,000 करोड़ का वो है, और मुझे कल ही नहीं करना है। वी हैव टू बिल्ड इट वेरी पेशेंटली एंड ब्रिंगिंग वैल्यू टू द एंड कस्टमर। So that is how we had things in mind. बट उस समय मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे को एक चीज़ लगता है, मेरे को ये कर देना चाहिए था कि जब सारे ही लोग इंटरेस्टेड थे तो मुझे 5 लोगों को ही बुला लेना चाहिए था उस समय फील्ड में। जो मेरे दिमाग से कहीं न कहीं मैं बोलूँगा, बिकॉज़ यू हैव टू मेनी थिंग्स इन योर माइंड, और इतना वो प्रेशर हो जाता है पूरा ये ऐसे-वैसे। तो मुझे लगता है इवेंचुअली हमने पाँचों को सेम डील में इन्वॉल्व करना था। ये मुझे बाद में लगा कि यार मैं ऐसे कर सकता था। अच्छा, ये बताइए कि साक्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? लाइक अच्छा क्या, और ये भी मुझे जानना है कि जैसे धंधा तो आपका है, तो एट द एंड बनाना आपको है, हुँ। आपका आपका बेबी है, आपको वो करना है। तो साक्स का कहाँ मेजर रोल आता है? और वो लाइक कैसे, अभी तक तो आपका एक्सपीरियंस हो ही गया होगा कि कैसे हेल्प करते हैं, तो वो मुझे जानना है। तो देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, जो हमें पता है, जिसको हमने सोच के करा, तो ऑब्वियसली वो करने का, उसको एग्ज़ीक्यूट एंड टू एंड करने का काम हमारा है, इसलिए हम फाउंडर कहलाते हैं, राइट? जहाँ तक बात रही शार्क्स की, तो ये बिल्कुल आप हम उनको एज़ एडवाइज़र के रोल में देखें। बहुत सिंपल है कि जब आप बिज़नेस में और जब इनिशियली बिल्ड कर रहे होते हो, स्पेशली ग्रोथ स्टेज में, तो हर कदम-कदम पे आपको ना नई-नई चीज़ें, नई-नई प्रॉब्लम, नई-नई सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो जब आपको कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपको ना अपने आस-पास लोगों से बात करके ही ठीक लगती है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको एक्चुअली लगता है कि मुझे एक उन ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस जिन्होंने ना बड़े-बड़े बिज़नेसेस बनाए हैं, एंड ऑब्वियसली उस वहाँ पर जो शार्क्स हैं वो लोग उसका हिस्सा बनते हैं। तो हम उनसे राय ज़रूर लेते हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि मेरे को ऐसे कुछ डिस्कस करना है, और ऑब्वियसली जब भी उनके पास समय होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद भी फाउंडर्स हैं, वो अपने भी बिज़नेस चलाने हैं उनको, और वो उनका प्रिंसिपल काम है। तो वो एक तरह का एक एडवाइस कि मेरे को ऐसे है, एंड ऑब्वियसली जब कोई एडवाइस भी करते हैं, उनका यही कहना होता है, ये हमें लग रहा है, बट आप दिन-रात अपना बिज़नेस कर रहे हैं, यू नो इट बेटर। बट देन एक एक फ्रेश, मैच्योर्ड, एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव जो शार्क से मिलता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उन तीनों लोग के साथ काम करने का? और साथ कितना टाइम देते हैं, लाइक जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कितना ही वो लगता होगा उनको सॉल्व करने में, कितना टाइम देते होंगे आप? ऐसे वो बहुत सारे कंपनीज़ में इन्वेस्ट तो किए होंगे। मैं हाँ, तो मैं बोलूँगा मैं काफ़ी लकी हूँ इस मामले में। मेरे को मैं औरों के बारे में तो नहीं जानता, ना मैं कमेंट कर सकता। लेकिन हमें जब भी ज़रूरत होती है, ऑनेस्टली जब आप बिज़नेस करते हो तो आपको समय भी नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें आपको जल्दी-जल्दी डिसीज़न लेने होते हैं। एंड ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, आप स्टार्टअप में मेरा तो ये मानना है, आप नई-नई चीज़ें ट्राई करते रहोगे, 10 में से अगर 3 भी सही हो रही हैं तो आप अच्छा कर रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली आपको रिस्क लेते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। रही बात टाइम की, तो अगेन ऐसा नहीं होता कि कोई कोई वीकली और मंथली कॉल रखनी है और इस टाइप से। इट्स सिंपली लाइक आप व्हाट्सएप पे टच में रहते हो, कोई चीज़ होती है आप व्हाट्सएप पे पूछ लिया, या लगा तो कैन आई टॉक, अपना टाइम सेट किया और अपने बात कर लिया। तो इसमें हर शख्स मतलब आई मीन अपने-अपने हिसाब से, कोई ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग हम लोग ना ना ऑब्वियसली हमारे पास इतना समय होता कि या सोचते कि हम ऐसा क्या रखें। ना ऑब्वियसली हम लोग इस तरह से कि, बट हाँ, हम उनको मंथली अपडेट बताते रहते हैं, क्या अच्छा चल रहा है, कुछ राय लेना हो तो राय लेते रहते हैं, कुछ पूछते रहें कि हम अब यूएस मार्केट पे फ़ोकस करें, ये करें, फंड रेज़ कर लें क्या और एग्रेसिवली जाएँ, आपको क्या लगता है कैसे? कैसे ऑब्वियसली जो एक ऐसी चीज़ है, जो ओवरऑल बिज़नेस को लेके उन्होंने भी किसी पॉइंट पे अपने जर्नी में फेस की होंगी, इस टाइप के सवालों पर डिस्कस करना मुझे ज़्यादा लॉजिकल लगता है।
छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी उन्हें परेशान करना फिर मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं। ओके, ओके, ऑसम। सो आई वांटेड टू आस्क यू कि 1 साल हो गया जब आप शार्क टैंक में अपीयर हुए। तो हाउ हैज़ वो हेयर ओरिजिनल्स का ग्रोथ कैसा रहा सिंस देन एंड ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा रहा और इंक्रीज़मेंट क्या-क्या आया आफ्टर शार्क टैंक? सो अगेन मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि आज भी आप हेयर एक्सटेंशंस की बात करो, इस कैटेगरी की बात करो, बालों को बेचने की बात करो, तो पूरा इंडिया सबसे पहले हेयर ओरिजिनल्स के बारे में सोचता है क्योंकि हमने पूरी दुनिया के सामने इसको प्रेज़ेंट किया और इस कैटेगरी को वैलिडेट कराया। कहते हैं ना चाँद पे सबसे पहले कौन गया सबको याद रहता है। तो बेसिकली अब इसमें उसके बाद रिस्पॉन्स की बात तो मैं अगेन एज़ आई सेड वैलिडेशन, एक तो हमें वैलिडेशन मिला जो बिज़नेसेस आई मीन शार्क से। सेकंड वैलिडेशन मिला जो उसके बाद लोगों ने जिस तरह हमें कॉल-वॉल वगैरह बाकी सारा चीज़ हमें पास आए, तब तो बहुत ही बहुत छोटा सेटअप भी था, हम लोग बहुत काफ़ी कम लोग थे टीम में। तो हमें याद है कि तब किस तरह हमारे को मतलब हमारी वेबसाइट जैम्स हो गए थे। हम मतलब फ़ोन एक पॉइंट के बाद तो मतलब उठ ही नहीं सकते थे इसमें फ़ोन्स। तो ये सारा रिस्पॉन्स और उसके बाद कहीं न कहीं जो हमारे साथ एक चीज़ बहुत अच्छा मेरे को लगता है जो रिस्पॉन्स वाइज़ ऑब्वियसली बाकी सारी ग्रोथ हुई। उसके बाद $1.5 मिलियन का हमारा एक फंड रेज़ भी हुआ। ऑब्वियसली हम लोग और अब हमारा अगला हम यूएस में प्रॉपर एक अगला फंड रेज़ के साथ और तेज़ी से एंटर कर रहे हैं। एक इंडियन ब्रांड को यूएस से एस्टेब्लिश करने में के अगले कदम पे हम लोग लगे हुए हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं अभी यहाँ नहीं बोल सकता क्योंकि वो प्रॉपर पीआर अनाउंसमेंट के साथ होंगी। तो मुझे जो पूरा रिस्पॉन्स तो क्या मैं तो कहूँगा ज़िंदगी बदल गई इनफैक्ट इसमें शार्क टैंक के बाद। क्योंकि ये कैटेगरी एक ऐसी थी कि इसमें लोगों को अगेन एज़ आई ऑलवेज़ मैंने बोला अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। कस्टमर को एस्पिरेशन और नीड है या इन प्रोडक्ट्स की बट उसे पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स होते थे। तो वो वहाँ से हमें बहुत अच्छा हुआ। हम लोग ऑलरेडी 3 शहरों में अपनी ऑफ़लाइन प्रेज़ेंस हमारे एक्सपीरियंस सेंटर्स बने और उसके अलावा 5 शहरों में हम लोग और अभी इस महीने ओपन हो रहे हैं। तो ये सारा और जहाँ भी हम लोग से बोलते हैं ऑब्वियसली लोग शार्क टैंक से की वजह से इनिशियली ही हमको पहचान जाते हैं कि ये लोग शार्क टैंक से हैं एंड ऑल। तो वो जो रिकॉग्निशन है वो तो उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो दैट हैज़ रियली हेल्प्ड अस। ओके, ओके। सो एक और क्वेश्चन है मेरा कि हेयर ओरिजिनल्स एम कर रहा था 100 करोड़ एनुअल रेवेन्यू रन रेट इन द नेक्स्ट 2 टू 2.5 ईयर। तो आपका ये टारगेट क्या अचीव हो पाएगा? लाइक एंड व्हाट्स द विज़न 5 ईयर्स में? लाइक हो तो पाएगा, पर अभी तक आप कहाँ पहुँचे हो और विज़न क्या है 5 साल? तो बेसिकली जो सबसे बड़ा बेंचमार्क होता है वो होता है जो हमारे लिए है वो है 100 करोड़ पे पहुँचना। 100 करोड़ का रेवेन्यू रन रेट बुक करना। ओके जिसको हम लोग वेरी कॉन्फिडेंटली 24 महीने के अंदर ब्रेक करेंगे। और ऑब्वियसली हम इस जर्नी को बहुत सस्टेनेबल भी बनाना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी नई लर्निंग्स भी रहती है। तो और रही बात ओवरऑल 5 साल के बाद, तो अगेन एज़ वी सेड ये मार्केट ओवरऑल $14 बिलियन का मार्केट है। हम लोग बहुत एग्रेसिवली यहाँ से अगले 5 साल में चाहते हैं कि हम इस ग्लोबल मार्केट का एटलीस्ट 5 से 7% हिस्सा बने और दिस इज़ वेयर वी एग्रेसिवली वांट टू गो अराउंड दैट। दिस इज़ व्हाई हम लोग बहुत एग्रेसिवली अभी से अमेरिकन मार्केट्स में अपने आप पे फुटप्रिंट्स बनाने शुरू कर रहे हैं। और हमारा आइडिया है कि हम या हमारा विज़न इसमें सिंपल है कि हम लोग इस पूरे सेगमेंट में जो इंडिया से ड्रिवन होता है, हम ग्लोबली ब्यूटी और हेयर केयर के सेगमेंट में इंडिया से पहली ग्लोबल ब्रांड है और 5 साल के अंदर हमारा एग्रेसिव टारगेट हम इसमें अचीव करेंगे। ओके, ओके। अच्छा, आपकी लर्निंग्स लाइक आपने भी स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, तो आपकी लर्निंग्स क्या रही हेयर ओरिजिनल्स को अब तक की जर्नी को स्टार्ट करने पे? और आपने लाइक बीच-बीच में भी बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, अपनी गलतियों से सीखा होगा, तो वो लर्निंग्स क्या रही? आप समराइज़ अगर करो तो अभी तक की जर्नी को? तो सी ये तो ऑब्वियसली हम सब लोग इंसान हैं, गलतियाँ ही करेंगे। टू एयर इज़ ह्यूमन, बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो कुछ तो होते हैं जो बिज़नेस डिसीजंस होते हैं कि कभी आपको लगता है कि नहीं
हम ये इस पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं अभी, या इसमें ज़्यादा टाइम लगाया, ज़्यादा बैंडविड्थ खर्च किया और बाद में लगा कि नहीं ये नहीं, इसकी जगह ऐसे करते हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है थोड़ा-सा टाइमिंग भी कोविड की वजह से कुछ चीज़ों में खराब हुई। हमने जब शुरू किया था तो 2 महीने बाद ही कोविड आ गया। तो हमारा जो जो बिज़नेस मॉडल था वो पूरी तरह हमें चेंज करना पड़ा। तो एक पॉइंट पे हमें एक्चुअली आइडिया ही नहीं था कि अब हमें करना क्या है। क्योंकि हमारा इनिशियल बिज़नेस मॉडल सबसे पहले था कि जैसे मैं पूरे टाइम पेरिस, फ्रांस में 11 साल बेस हुआ। आई स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच, मेरे वहाँ काफ़ी नेटवर्क सारा कुछ था। तो मेरा आइडिया था जो कि हम लोग इसको प्रॉपर वहाँ पहले पोज़ीशन करेंगे, बेसिकली बाहर की मार्केट में, और तब इसको लर्निंग के साथ इंडिया में लाएँगे। लेकिन जब कोविड हुआ तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया कि बाहर तो कुछ कर ही नहीं सकते, सारा लॉजिस्टिक बंद सब कुछ। तो ऑब्वियसली वहाँ से जब फिर शुरू किया तो हमें यही नहीं पता था कि हम अब कौन-सी मार्केट में, किस शहर में जाएँ, कहाँ जाएँ? ये तो कुछ इस तरह की गलतियाँ तो नहीं कहूँगा, सिचुएशनल चीज़। दूसरा ऑब्वियसली जब आप यू नो चीज़ें डेलीगेट करते हो तो कई बार आपको नई आइडिया या नहीं समझ पाते, क्योंकि कैटेगरी इतनी नई है। तो बहुत सारी चीज़ें आप सिर्फ सोचते हो कि नहीं, लेट मी क्रिएट अ टीम लाइक दिस, ये वाला पार्ट ऐसे करते हैं, पहले इसको प्रायोरिटी पे लेते हैं, लेकिन आपको इवेंचुअली बाद में समझ में आता है कि नहीं, मेरा पहला फोकस कुछ और होना चाहिए, जो आपको ऑब्वियसली धीरे-धीरे करके समझ में आता है। तो आई वुड से दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, ऑपरेशनल मिस्टेक्स दैट यू मेक। फंडामेंटल मिस्टेक तो मेरा कोई ख़ास ऐसी मेरे को नहीं लगता। वापस मैं समय में जाके दोबारा अगर इसको करना चाहूँ तो मेरे ख़्याल से शायद तब भी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में आती नहीं है कि मैं इनको इस तरह डिफरेंट ही कर देता। हुँ। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे एक लाइक जेन ज़ी है जो कि एकदम स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है, उसके पास आइडिया है, तो एकदम बेसिक से बताइए कि व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, वो अ, लाइक उसके पास बस रफ आइडिया है, तो वो आगे क्या करे, उसके बाद कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं? एकदम बेसिक से, कॉलेज लेवल के बच्चे को समझ में आए इस तो मैं ना इसको बहुत हाँ, तो वैसे मैं ये सब बोलते हुए एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मैं कोई एंटरप्रेन्योर सीरियल एंटरप्रेन्योर ये सब नहीं। मेरे साथ लाइफ़ में सिंपल था, मेरे को एक चीज़ मेरा लाइफ़ में है, मेरे को जो चीज़ समझ में आती है, तो मैं पूरा समय लगाता हूँ उसको समझने में, और फिर पकड़ लिया तो फिर मेरा ये है कि अब इसको करके ही छोड़ूँगा कुछ। तो जो ये कैटेगरी जैसे ये हेयर एक्सटेंशंस या ह्यूमन हेयर का मार्केट, मुझे बहुत समय लगा खुद को कन्विंस करने में। ना उसके बाद जब मेरे को ये समझ में आ गया कि नहीं, मेरे को इसमें कुछ करना है, मैंने इसमें बहुत डीप डाइव रिसर्च कर लिया है। तो मेरा ये था कि अब मैं इसमें कुछ बड़ा करके ही निकलूँगा, छोड़ो नब नब नब, मतलब अब इट इज़ दिस वे और हाईवे। हुँ, तो अ, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जनरली आजकल एक चीज़ जो होती है ना, लोग बोलते हैं कि मेरे को कोई आइडिया बता दो, मैं फिर इस पे ऐसे करूँगा। पहली बात तो मेरे को थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि आपको जेन्युइनली बिलीव होना चाहिए कि मैं वो जो भी आइडिया है वो आपको इंटरेस्ट करना चाहिए। किसी और का आइडिया और इसमें दम है, ये तुरंत ऐसे नहीं तो कोई और कर लेगा, ऐसा नहीं होता। आप कुछ भी पकड़ लो इस दुनिया में, कोई ना कोई कुछ ना कुछ दुनिया में कर ही रहा हो। पॉइंट ये है कि आप उसको कितना अच्छे से कर सकते हैं। तो एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अबाउट एग्जीक्यूशन। कोई भी चीज़ जो आपको पर्सनली आप कन्विंस्ड हो कि नहीं, मेरे को इसमें लगता है कि दिस हैज़ गॉट, चाहे वो यूनिट इकोनॉमिक्स वाइज़ हो या जिस भी तरीके से हो, अगर आप उससे कन्विंस्ड हो उस बिज़नेस के आइडिया, उस बिज़नेस की कैटेगरी, उसकी टारगेट ग्रुप से, एंड उसके अलावा आप आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई एग्ज़ीक्यूशन का मेथड है जो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगेन आइडिया हो कैसे पूरी तरह बिल्ड कर पाएँगे डॉट बाय डॉट, इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट। एक चीज़ जो और मेरे को लगता है ना कि अगर आपको किसी चीज़ में कन्विक्शन है, आप सबसे पहले उसको करके ही देख लो। ज़रूरी थोड़ी है ना कि हर चीज़ को आपको वो बहुत ही बड़े स्केल पे करके और फिर देखना है। हर चीज़ मेरा ये मानना है कि अगर आपको कन्विंस हो चुके हो आप उसको करो, रादर देन आपने 100 लोगों से डिस्कस किया, 500 लोगों से और डिस्कस ही कर रहे हो, तो उससे कहीं बेहतर है कि अगर आपको कन्विंस हो चुके हैं तो आप सोचो अब इसका मैं पायलट कैसे करूँ? मैं काइंड ऑफ अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इसको बोल लीजिए या प्रोडक्ट मार्केट फिट, जिस भी तरीके से आप कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका सोच होना चाहिए कि मैं इसको कैसे वैलिडेट करूँ कि ये जो मैं सोच भी रहा हूँ, उसकी पहली स्टेप कैसी है? क्या लोगों को ये समझ में आएगा? क्या इसका कोई ट्रैक्शन है? अगर आप देखो फंड रेज़िंग या उसमें भी, तो जो बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड, बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ लोग पूछते हैं कि आपका अभी तक का ट्रैक्शन क्या रहा है? हुँ, आपकी जर्नी कैसी रही है?
इससे समझ में आता है कि भाई आपका एक्चुअली जो आइडिया है वो सेलेबल भी है क्या, उसका कोई मार्केट भी है क्या, या क्या उसमें लोग इंटरेस्ट लेंगे। तो हमेशा सबसे पहला सवाल, और एक चीज़ जो मुझे लगता है हमेशा इंसान को सोचना चाहिए, चाहे जो भी इंसान सोच रहा हो, कि मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ क्या वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम। अब वो उसके बेसिस पे और उसको सॉल्व करने का मेरे तरीके से मैं क्या कुछ बेटर तरीके से एक बेटर एक्सपीरियंस कस्टमर को दे पाऊँगा? तो आई थिंक इस तरह की जब आप छोटे एक प्रॉब्लम को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ के आप सोचोगे और आप एक-एक चीज़ करके देखो। बाकी इस दुनिया में सच्चाई यही है कि हर इंसान प्रेडिक्ट ही करता है। आपको कन्विक्शन है, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला, परसिवरेंस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपको अगर बिलीव आ गया है किसी चीज़ में तो आप करते रहो, आप उसको अगेन डोंट ब्लाइंडली फॉल इन लव ऑल्सो। आप स्टॉप एंड ऑब्जर्व कि क्या इट इज़ मेकिंग सेंस और नॉट ऑल्सो बाय टेकिंग अ बुल्स आई व्यू। सो मैं यही एडवाइस करूँगा कि ट्राई एंड डू इट इन व्हाटएवर पॉसिबल वे। आपके पास 10 ही हज़ार रुपए हैं, आप 10,000 रुपए में ही सोचिए क्या बजट कर पाऊँगा, या जैसे भी जिस भी तरीके से। पहले पहले कहीं न कहीं अपने आइडिया को वैलिडेट करिए। ओके, ओके। सो जो भी देख रहा हूँ मेरा आप यही लाइफ है। ओके, जो भी देख रहा हूँ उनको काफ़ी कुछ लर्निंग्स मिली होगी दिस पॉडकास्ट से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच जितेंद्र फॉर जॉइनिंग मी हियर। आप कुछ लास्ट वर्ड्स कुछ कहना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं उनके लिए? अ, मैं तो बस एक चीज़ हमेशा जो मेरे को लगता है, मैं बहुत छोटे से शहर अलीगढ़ से आया हूँ। मेरा पूरा बचपन वहीं कटा है। इनफैक्ट मैं अलीगढ़ शहर में भी नहीं रहता था, अलीगढ़ शहर के दूर एक छोटा-सा कस्बा है, कासिमपुर बोल के, मैं वहाँ रहता था। और मुझे याद है तब ना पूरे बचपन में मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को बस दिल्ली जाना है। मतलब दिल्ली मेरे को बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस समय। और कॉलेज खत्म करते-करते अगले 5 साल तक मैं शायद तब तक ही अ अ, आई मीन यूएस से लेके कैम्ब्रिज और सारा जगह पे मेरे एक्सचेंज प्रोग्राम सब कुछ का हिस्सा रहा। मुझे ऐसा लगता है तब मेरे को ऐसा धीरे-धीरे ना ऐसे लगने लगा कि अगर आप ड्रीम करते हो ना तो वो पूरे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बस लगे रहना पड़ता है। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैं एक सिंपल एक छोटे से परिवार में छोटी-सी जगह से रह के निकल के जो भी छोटा-मोटा अभी तक किया है, और भगवान करे मौका दे कि मैं और लोगों के एम्प्लॉयमेंट का कारण बनूँ। तो आई थिंक मैं तो बस यही एडवाइस कर सकता हूँ कि आप लोग आगे नेवर नेवर थिंक कि मैं कहीं एक पर्टिकुलर जगह से आ रहा हूँ, या मैं एक पर्टिकुलर स्कूल से हूँ, या एक पर्टिकुलर कुछ भी सिचुएशन से हूँ, तो मैं शायद बड़ा नहीं कर पाऊँ। लाइफ आई थिंक आपको मौके देती है, बार-बार नहीं देती, लेकिन अगर आपको मौका लगता है आपके पास है तो प्लीज़ ग्रैब इट एंड गिव योर बेस्ट। Like it was so much. I got goosebumps. So thank you so much जितेंद्र for joining me। और जो भी लोग देख रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे आपकी जर्नी से। आपकी जर्नी सच में बहुत इंस्पायरिंग है और आप बहुत ज़्यादा लाइक अंदर से ऐसा लगता है आप बहुत ठहरे हुए इंसान, क्योंकि आप बहुत शांति से और इतना क्वाइटली जवाब देते हो। सो थैंक यू सो मच जितेंद्र फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। थैंक यू सूर्या, थैंक यू फॉर हैविंग So, thank you so much, guys, for watching this episode. So, stay tuned and subscribe to this channel for more amazing content like this. Don't forget to hit the like button and share this video with your friends. Also, let me know whom you want to see as a next guest on the podcast.